जाएंगे। I had mentioned that there are two wonderful books are put together in the Bible by the Holy Spirit. और मैंने इस बात का जिक्र किया था कि बाइबल में दो बड़े ही अद्भुत पुस्तकों को रखा गया है, लाया गया है। The main characters in that book live at the same time. और वो उन दोनों पुस्तकों का जो स्वभाव है, जो चरित्र है, एक ही समय में जो है वो देखा गया, पाया गया। And these two men are of different types. और ये जो दोनों लोग थे वो भिन्न प्रकार के थे। They lived in different circumstances or situations. और अलग अलग परिस्थिति में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। But both of them had the same mission and same goal. लेकिन उनके पास एक ही लक्ष्य था, एक ही मकसद था। One talks about the spiritual qualities of a spiritual person. और ये जो है आत्मिक व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में बात करता है। The second person is teaching us about the administrative abilities of a spiritual person. और दूसरा व्यक्ति जो है एक आत्मिक व्यक्ति के उसके स्तर के बारे में वो बात करता है, उसके प्रबंधन के बारे में बातें करता है। These two persons are Ezra and Nehemiah. और ये दो जो व्यक्ति हैं, एजरा और नेहमया है। Both of them were contributing to each others in the same goal. और वे दोनों अपने अपने बातों को जो है एक दूसरे के साथ वो सहभागी कर रहे थे, बांट रहे थे एक ही लक्ष्य के लिए। Now these two books are teaching a lot about leadership and its importance and its accountability. और ये दोनों पुस्तकें जो बहुत बातें बताती हैं अगुवेपन के बारे में, उसके अकाउंटेबिलिटी के बारे में, उसके जवाबदेही के बारे में इत्यादि बताता है। Many seem to think today in the Christian church that being a good Christian leader is very easy. और कई लोग आज के समय में ऐसा सोचते हैं कि एक मसीही अगुआ बनना बड़ा ही आसान है, सहज है। Maybe they are right in some respect. हो सकता है कि कुछ हद तक वो सही भी हो सकते हैं। But when we look into the scripture, परंतु जब हम वचन में देखते हैं, whether it is Old Testament or New Testament, चाहे वो नया नियम हो या पुराना नियम हो, the responsibility is very heavy and it pulls down the person that he cannot shoulder it without the help of our Lord Jesus. Sorry, I couldn't listen you properly. The responsibility is so heavy. या उनकी जो जवाबदेही या जिम्मेवारी है वो बहुत ही बड़ा है। And it is so pulling down, they cannot shoulder it without getting the strength from Lord Jesus Christ. और बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ पाए इसके भार को वो सहन नहीं कर सकते, अपने कंधे पर उसका बोझ नहीं उठा सकते। Many doesn't seem to think that is very important. और बहुतेरे लोग इस बात को जो है बहुत महत्वपूर्ण करके नहीं समझते। They seem to think that because they are secularly very successful as a leader, they can manage the house of God. कई लोग ऐसे सोचते हैं कि सांसारिक रीति से वो बहुत ही सफल व्यक्ति है, वे परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर के लोगों को भी उसी रीति से वो संभाल पाएंगे। The leadership according to the Bible, as I have been telling, is totally different from the leadership in the world. और जो संसार का जो अगुवापन है या अगुवेपन की जो बातें हैं बाइबल में बताई गई अगुवेपन से बिल्कुल भिन्न है। बाइबल का अगुवापन बिल्कुल संसार की अगुवेपन से भिन्न है। Now we will go to study some of the characteristics which are required to train a leader for the future. और हम उन बातों को भी इस समय अध्ययन करेंगे जो आवश्यक अगुवापन है उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनको सिखाने के लिए अगुवेपन के संबंध में। And in that connection we will go to the book of Ezra. In that connection we will go to the book of Ezra. Hello? I still cannot listen. Yeah, I couldn't listen you. I think there is something problem. Yeah, go ahead. In this connection we will go to the book of Ezra. Yeah.
और इस संदर्भ में, इस संबंध में हम सीधे तौर पर इजरा की पुस्तक से देखेंगे। I'll go to share screen. और यहाँ पर हम स्क्रीन शेयर करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। Responsibility of the assembly in preparing future leadership. भविष्य के अगुवे को तैयार करने के संबंध में स्थानीय कलीसिया की जिम्मेवारी। Lessons from the life of Ezra. और हम इजरा के जीवन से पाठ को सीखते हैं, उसके द्वारा सीखते हैं, सीख को सीखते हैं। Spiritual training. आत्मिक प्रशिक्षण। Let us read Ezra chapter 7 verses 1 to 5. आइए हम इजरा नबी की पुस्तक 7 अध्याय 1 से 5 पद तक हम पढ़ें। मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़िए। यस। इन बातों के बाद अर्थात पारस के राजा अर्थछत्र के दिनों में इजरा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वह साराया का पुत्र था, साराया अजरिया का पुत्र था, अजरिया हिलकिया का, हिलकिया शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहितूब का, अहितूब अमरिया का, अमरिया अजरिया का, अजरिया मरायोत का, मरायोत जरहिया का, जरहिया उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अभिषु का, अभिषु पिनहास का, पिनहास एलियाजार का, और एलियाजार हारून महायाजक का पुत्र था। Now we read here the genealogy of Ezra. और यहाँ पर हम इजरा के वंशावली के बारे में पढ़ते हैं। Now why this genealogy is required? अभी इस वंशावली की क्या आवश्यकता पड़ी? This shows how the forefathers of Ezra were very particular about spiritual training. और ये इस बात को दिखाने के लिए कि इजरा के जो पुरखा थे, जो पूर्वज थे, आत्मिक प्रशिक्षण को लेकर वो कितने सजग थे, कितने तत्पर थे। Including probably the grandparents of Ezra and the parents of Ezra. और उनके साथ भी उनके जो परदादा और उनके जो पिता के जो घराने थे, उनको साथ में लेकर के जो है उस आत्मिक प्रशिक्षण के लिए वो जो है तत्पर थे। During Ezra was not in Israel or Jerusalem, he was in the place where the people of Israel were kept as captive. और जबकि वो उस इजराइल के अंदर नहीं था, और उन लोगों के लिए वो चिंता किया जो बंधुआई में पड़े हुए थे। No. He was living along with the people who were in captivity. और वो उनके साथ रहता था जो गुलाम की अवस्था में, गुलामी में थे, बंधुआई में थे। Now the parents of Ezra realized there is going to be a day according to the promise of God. At that time, Ezra as a priest need to serve God. Sorry, repeat it once. The parents of Ezra realized और इजरा के माता पिता ने इस बात का एहसास किया, there is going to be a day according to the promise of God. Ezra has to return to Jerusalem and serve God. और परमेश्वर के उस वचन के अनुसार, वायदे के अनुसार इजरा वापस आने वाला है और परमेश्वर की सेवा करने वाला है। So he should know who he is and what is his responsibility. और इस बात को उसे जानना जरूरी है कि वो कौन है और उसकी जिम्मेवारी क्या है। It is a surprising thing, even in captivity, these genealogies were maintained by the family of Ezra. और ये बड़ा आश्चर्य का एक विषय हो सकता है कि बंधुआई के दौरान भी इजरा के परिवार के द्वारा वंशावली को जो है मेंटेन किया गया, उसकी जो है देखभाल की गई। Many of us cannot even recollect beyond 2 or 3 generations. कई लोग अपने दूसरे तीसरे पीढ़ी में भी लोगों को याद नहीं कर पाते, स्मरण नहीं कर पाते। We are in such a situation. और हम इस परिस्थिति में आ जाते हैं। Whereas the family of Ezra thought it is very important that the future generation should know what a blessed people they are. लेकिन उसी जगह पर हम देखते हैं इजरा के परिवार के विषय में
वो इस बात की चिंता करते हैं और इस बात को समझते हैं कि क्या ही धन्य लोग हैं वे। These men were faithful to God and they had a vision for the future. Sorry, repeat it once. I think you should get your audio straightened. Yeah, it is fixed, uncle. It is fixed. While you They were trained by faithful men who had the vision for the future. और वे उस विश्वास योग्य लोगों के द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे जिनके पास भविष्य को लेकर योजनाएं थी, दर्शन थे, लक्ष्य थे। They knew that the future generation also should continue to serve the Lord. और इस बात को वो समझ पाए, इस बात को वो जानते थे कि भविष्य में भी उसकी सेवा करने के लिए अगुवे की आवश्यकता है। So they were preparing each generation after them. और इसलिए वो हर एक पीढ़ी में से जो है उस अपने बाद वो जो है अगुवे को तैयार कर रहे थे, प्रशिक्षित कर रहे थे। That is how we have the genealogy of Ezra. और इसी रीति से इजरा के वंशावली को हम देखते हैं। It is going up to Aaron, the first high priest. और वो पहला जो महायाजक हारून था वहां तक जाता है। It is very important for us that the local assembly should have a record how God's work started and how it continued from generation to generation, so that the future generation should know what is their accountability to God. ओके और इसलिए स्थानीय कलीसिया की ये जिम्मेवारी होता है कि वहां की सेवकाई किस रीति से आरंभ हुई और वहां पर अगुवे किस रीति से प्रशिक्षित किए गए, ताकि आने वाले भविष्य में जो अगुवे तैयार किए जाएंगे वो इस बात को जान सके, समझ सके और उनकी जवाबदेही को वो पहचान सके। And these men imparted the mission and the goal for Ezra to know. और ये लोग जो है उनके लिए बड़ी आवश्यक थी ताकि वो इस बात को समझ सकें। No. These faithful men imparted the mission and goal for Ezra to know. ओके और ये विश्वास योग्य लोगों ने उस दर्शन को एजरा तक पहुंचाया ताकि वो जान सके। First of all, they kept his identity known to him. और सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पहचान को उसे जानने के लिए उन्होंने दिया। Ezra should know who he is. और एजरा को ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन है। And his future should be known to him. और उसका भविष्य भी उसे मालूम होना चाहिए। He should know his goal. और उसे उसका लक्ष्य भी मालूम होना चाहिए। Read verse 6. 7 अध्याय के 6 पद हम पढ़ेंगे। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था, और इसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा, वर दे दिया। Read verse 6 again, please. यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था, और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा, वर दे दिया। In verse 6 what we see? और इस 6ठे पद में हम क्या देखते हैं? You read towards the end of the verse, God's goodness and the grace was with Ezra. और हम इस पद के अंतिम भाग में देखते हैं परमेश्वर का अच्छाई को, भलाई को हम यहाँ पर एजरा के प्रति देखते हैं। The कृपा दृष्टि you read. यस, एजरा परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि एजरा के ऊपर हम देखते हैं। In English Bible it says, the hand of the Lord his God upon him. और अंग्रेजी बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। You see, when we love a person, जब हम एक व्यक्ति को प्यार करते हैं, प्रेम करते when we हैं, consider a person very important to us, और जब हम किसी व्यक्ति को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, we put our hand upon that person और तब उस व्यक्ति के ऊपर हम अपना हाथ रख देते हैं to show forth that we love you and we consider you important to us. और इस बात को जताने के लिए, बताने के लिए
कि हम आपसे प्रेम करते हैं और आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं We are with you. और हम आपके साथ हैं। The Parameshwar ka kripa drishti, I have no dispute on it, but when we read the hand of the Lord was upon him, it signifies more. और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, इस बात को बताना चाहता था कि परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर थी। This means that the Lord was with him at every stage. इसका मतलब ये था कि परमेश्वर उसके साथ हर स्तर में, हर घड़ी उसके साथ। So Ezra could recognize his mission. और इस रीति से एजरा उस बात को वो पहचान पाया, देख पाया। Ezra could recognize his mission. और एजरा जो है अपने लक्ष्य को पहचान पाया। And he set on his journey to fulfill the mission. और उसने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार किया। Verse 6 says, he was a ready scribe. और वहां पर वो लिखा है कि छठे पद में लिखा है कि वो निपुण शास्त्री था। Ready scribe means he is ever ready with the word of God and he can serve him at all circumstances. और इस पर निपुण शास्त्री का मतलब ये है कि वो हर परिस्थिति में परमेश्वर के उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार था, उसको पूरा करने के लिए तत्पर था। He knows the word of God very well. और वो परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से जानता था। Personal commitment. व्यक्तिगत समर्पण। Read verse 10. 10 पद पढ़ेंगे हम इसी अध्याय से। क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। So he had committed himself to the mission or the goal given by the Lord. और एजरा ने परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त उस लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। First, he knew his goal. पहला उसने अपने लक्ष्य को जाना। He knew what is his mission. और इस बात को जाना कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका And he knew that he has been well prepared by God for that work. और उस बात को जान पाया कि वो भविष्य के लिए परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया है। Now, having known all those things, he has committed himself to that goal. और इन सारी बातों को जान लेने के बाद उसने परमेश्वर के उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करता है। And he also knows that the presence of God is with him in this mission. और इस बात को भी समझ पाया कि परमेश्वर की उपस्थिति इस लक्ष्य को पूरा करने में उसके साथ है। That is what verse 6 said. The hand of the Lord was upon him. और यही बात हम छठे पद में देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि उस पर थी। Now, having all these assurances with him, he committed himself for this goal. और इन सारे निश्चितताओं को जानने के बाद इस लक्ष्य के लिए उसने आप को समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। But when he committed himself, what he did? लेकिन जब उसने अपने आप को समर्पित किया, उसने क्या किया? He was open to learn continually. वो सीखने के लिए अपने आप को उसने लगातार हमेशा खोल कर रखा। He was already a ready scribe. और वो जो शास्त्री था, खुला हुआ, एक खुलापन वाला शास्त्री था। But still the verse 10 says, he was willing to learn and to practice and then to teach. और हम यहाँ 10वें पद में देखते हैं कि वो वचन सीखने के लिए तैयार था, उसको व्यवहार में लाने के लिए वो तैयार था, सीखना चाहता था और सिखाने के लिए भी सीखा। It is a very sad thing in the Christian world today. और आज मसीही जगत में सबसे दुखद बात ये है, Many people think that if they go for a study of the word for few years, they know the Bible very well. कई एक लोग ऐसा समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए
बाइबल अध्ययन करने के लिए जाता है और वो जो है बाइबल को भली भांति अच्छी तरह के तरीके से समझ लेता है. Maybe they know the Bible, हो सकता है कि वो बाइबल को जानते हों, but whatever you knew or a person knows, unless every day it is put into practice, you won't learn further from the Lord. यस, हो सकता है कि वो व्यक्ति इस बात को जानता होगा या आप भी इस बात को जानते होंगे, लेकिन जब तक हम अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में इसको लागू नहीं करते हैं, हम सीख नहीं पाएंगे. So the servant of God's life is continual learning. और एक दास का जो जीवन है, परमेश्वर के एक दास का जो जीवन है, लगातार सीखने का है. So a servant of God should be committed to regular study of the word. इसलिए परमेश्वर के दास का जो जीवन होना चाहिए, वो परमेश्वर के वचन को निरंतर सीखने के लिए समर्पित. I may have mentioned it earlier, I do not remember now. हो सकता है कि मैंने इस बात को पहले जिक्र किया होगा, मुझे स्मरण नहीं आ रहा. There was a servant of God in India called Bhakt Singh. और वहां पर एक परमेश्वर का दास जो थे, उनका नाम भक्त सिंह था भारत में. He did a lot of work in India, Nepal and Bhutan. और उन्होंने भारत में, नेपाल में और भूटान में बहुत सारे कामों को उन्होंने किया. He was an example for many to follow. और कई लोगों को उन्होंने अगुवाई किया मसीह यीशु के पीछे होने के लिए. He was an example. और वो एक उदाहरण भी थे. One person told me, Brother Bhakt Singh used to buy a new Bible every year. और किसी ने, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भाई भक्त सिंह हर एक साल एक नया बाइबल खरीदते हैं. Why did he buy a new Bible? क्यों हर साल वो नया बाइबल खरीदते हैं? He felt whatever he learnt earlier should not come in his further learning. So he did not wanted the old marked Bible. So he wanted a fresh Bible, fresh inspiration from God. और जो कुछ भी वो पिछले दिनों में सीख चुके थे, उन बातों का जो है आने वाले समयों में वो सहारा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हर बार वो नया खरीदते थे ताकि फ्रेश रीति से, तरोताजगी रीति से जो है नए तरीके से परमेश्वर के वचन को सीख सके. Because many have the practice of marking on the side of the Bible. चूंकि कई एक लोगों का एक इस प्रकार का आदत है, बाइबल के भाग में, कुछ हिस्से में कुछ बातों को लिखने का है, नोट करने का है. But he wanted every time new thoughts should be noted on his Bible. और वो भी इसी बात को, इसी विचार को वो चाहते थे कि नए नए विचार जो है वो नोट किए जाएं, लिखे जाएं. So learning from the scripture doesn't stop for a good leader. और एक अच्छे अगुवे के लिए परमेश्वर के वचन से सीखना कभी भी समाप्त नहीं होता, रुकता नहीं. And he should be willing to practice what he has learned from the Lord. और जो कुछ भी परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर से उसने सीखा है, उसे अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए इच्छुक. And he should have the burden to teach other children of God. और उसके पास परमेश्वर के दूसरे बच्चों को सिखाने के लिए उसके पास बोझ होना चाहिए. This is called the personal commitment. और ये जो है व्यक्तिगत समर्पण कहलाता है. Go to verse 11. अभी हम 11 पद में जाएंगे. Read, please. जो चिट्ठी राजा अर्थछत्र ने एजरा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इजराइलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है. Now, who was this Ezra in that kingdom? अभी उस राज्य में ये एजरा कौन है? He is not the relative to the king. वो राजा का कोई रिश्तेदार तो नहीं है. The scripture doesn't say that he served king in the palace. और वचन भी ऐसा नहीं बताते थे कि उस राजमहल में वो राजा का सेवा किया. Nothing is mentioned about him. और उसके बारे में ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है. But here we see the king recognized Ezra. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा जो है एजरा को पहचान लिया. And that shows that he had good report even without
That means outside the Jewish people. और हम इस बात को भी देखते थे कि उसके बारे में एक अच्छा रिपोर्ट भी हम देखते हैं यहूदियों के मध्य में भी और यहूदियों के बाहर भी। Read verse 12, please. हम 12 पद पढ़ेंगे। अर्थात एजरा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, उसको अर्थछत्र महाराजा धीराज की ओर से इत्यादि। What is written in verse 12? अभी 12 पद में क्या लिखा हुआ है? The king says, Ezra is the priest, a scribe of the law of God of heaven. और वहां पर राजा कहता है एजरा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है। Can today's Christian have such good reputation among the unbelievers? आज के दिनों में अविश्वासियों के बीच क्या इस प्रकार का जो है नाम या इस प्रकार का जो है सुनाम हमारे बीच है मसीहियों में? That is why when Paul writes about the qualities of an elder, he says that they should have good reputation within and without, even for deacon also mentioned. या इसीलिए पौलुस जब प्राचीनों के विषय में और डिकन के विषय में, सेवकों के विषय में जब लिखता है तो कहता है कि हमें जो है सुनाम होना चाहिए, अच्छा रेपुटेशन हमारे पास होना चाहिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में और बाहरी जीवन में। So people should be able to recognize that we fear God and we are honest people. और ताकि लोग जो हैं हमें पहचान सकें कि हम परमेश्वर के भय को मानते हैं और हम परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जीते हैं। Many years ago, we were continually going to a village in Nepal. और वर्षों पहले एक गांव में, नेपाल के गांव में हम लगातार जाया करते थे। There was a believing family. और वहां पर एक विश्वासी परिवार था। We used to go there and have meetings in their home. सॉरी, We used to visit them and have meetings in their home. और हम उनको जो है विजिट किया करते थे और उनके घरों में सभाएं आयोजित किया करते थे। We used to go out into the village and invite the people to that meeting. और हम उस गांव के बाहर जाकर के लोगों को उस सभा के लिए आमंत्रित किया करते थे। Years have passed. और जैसा ही समय बीतता गया, साल बीता, Hardly anybody was saved in that village. शायद ही कुछ लोग जो है उस गांव में बचाए गए। One day we were talking and there was a young man from that village with me. और एक दिन हम बात कर रहे थे और एक नौजवान व्यक्ति उस गांव से था। He was newly saved. और वो नया जो है उद्धार पाया हुआ था। We were discussing this particular problem that we have been visiting regularly for so many years. और हम इस विषय के बारे में बातें कर रहे थे कि हम लोग कई एक सालों से लगातार जो है निरंतर हम जो है आते जाते रहे हैं। Why the Lord is not saving souls? परंतु परमेश्वर क्यों प्राणों को बचा नहीं रहा है, लोगों को बचा नहीं रहा है? This young man all of a sudden said, और ये नौजवान व्यक्ति अचानक से इस प्रकार से कहा, he's a new believer. वो एक नया विश्वासी था। He said, how will souls be saved? Because this family is not right. उसने कहा कि कैसे जो है लोग बचाए जाएंगे, क्योंकि ये परिवार जो है अच्छा नहीं है। Their testimony is not good. उनका जो गवाही अच्छा नहीं है। See, there should be a good report, not only within the local church, even outside the local. और इसलिए एक सुनाम होना चाहिए, अच्छा जो है उसके विषय में बातें होनी चाहिए, कलीसिया में ही नहीं तो कलीसिया के बाहर भी। He was recognized by the king as a scribe of the word of God. और वो राजा के द्वारा जो है परमेश्वर के वचन का निपुण शास्त्री, And he has the king's commendation. और हम देखते हैं कि उसके पास राजा का एक प्रशस्ति पत्र था। And his responsibility is identified. और उसकी जो जिम्मेवारियां थी वो जो है पहचानी गई। Read verse 13 to 16 and 23. 13 पद से 16 पद। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इजरायली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहे वे तेरे साथ जाने पाए। तू तो राजा और उनके
सातों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले। और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाए। 23 पद, जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए? Ezra was given a very big responsibility. इज़रा को एक बहुत ही बड़ा जिम्मेवारी दिया गया था। The king is telling, और राजा ऐसा कहता है, me and my counselors are sending you that you should know what is to be done for the city of God, what is to be done for the people of God there. और वो कहता है कि मैं और हमारे जो राज्य के लोग तुम्हें भेजते हैं, और तुम्हें इस बात को जानना चाहिए कि इस राज्य के लिए, इस नगर के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं। Please listen. The king is telling Ezra in that letter, और उस पत्री में राजा जो इज़रा से कहता है, you are sent to Jerusalem with a responsibility. और तुम यरूशलेम में एक जिम्मेवारी के साथ भेजे जाते हो। Me and my counselors are sending you. और मैं और मेरे राज्य के लोग, काउंसलर लोग भेजते हैं तुम्हें। Why are we sending you? लेकिन हम तुम्हें क्यों भेज रहे हैं? When you go to Jerusalem, और जब तुम यरूशलेम में जाओ, there, according to the word of God, what should be done to Jerusalem, what should be done for Judah, you must know that and you should do it. और वचन के अनुसार यरूशलेम में क्या किया जाना चाहिए, यहूदा में क्या किया जाना चाहिए, उन बातों को समझकर तू कर। Because for the Israelite, Jerusalem is a very important place. क्योंकि इजराइल के लिए यरूशलेम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जगह है। And Judah is a place from where the Messiah is going to come. Yes, इजराइल वैसा जगह है जहाँ से मसीहा, Judah is a place from where the Messiah has to come. और यहूदा एक वो स्थान है जहाँ से मसीहा आने वाला है। So for the city of God, for the place of the Messiah, what should be done? Go and find out according to the word of God. और परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या किया जाना चाहिए, उसको जा करके ढूंढो और उसको करो। And you must fulfill that. और उसको करना है, उसको पूरा करना है। Because we have kept all of you, God's people, in captivity for so long. और इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पे लंबे समय से इस बंधुआई में रखा है। So the wrath of God should not come upon us. ताकि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर न आए। So please go and do what should be done according to the word. और परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना चाहिए, कृपया करके तुम जाओ और उसे ढूंढो, उसका पता लगाओ। See, we are not, it's actually a very deep study there. We have no time for that. वास्तव में इस विषय को लेकर के गहन अध्ययन है और उसके लिए हमारे पास समय नहीं। So what we learn from these verses is the leadership is assigned to Ezra. और यहाँ पर हम इन वचनों के द्वारा जो बात सीखते हैं वो ये कि अगुवापन जो है एजरा को सौंपा गया, दिया गया। And his responsibility is to find out the mind of God concerning God's house. और एजरा को परमेश्वर के घराने को लेकर के उसके विचारों को, उसके मनों की बातों को ढूंढने के लिए, पता लगाने को उसे दिया गया। He was entrusted with the stewardship towards that work. और उसे भंडारीपन का कार्य भी, जिम्मेवारी भी उसे दिया गया। And priesthood's responsibility also should be fulfilled. और याजकीय जो जवाबदेही है या जिम्मेवारियां है उसके भी प्रति
पूर्ति होनी चाहिए, करनी चाहिए। The king is telling you will go to Jerusalem, you will know about Jerusalem's need, you will know about Judah's need, do all those things, and above all, you are a priest and the scribe of the word of God. You need to intercede for me and my family and for my people before God at Jerusalem. That is what verse 23 says. और यही हम पद 23 में देखते हैं कि राजा जो इज़रा को कहता है कि तुम यरूशलेम को जाओ, तुम यहूदा को जाओ, उनकी जरूरतों को ढूंढो, उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम याजक हो, तुम परमेश्वर के वचन में निपुण शास्त्री हो, और हमारे परिवार के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता करो। See, an unbelieving king giving so much of responsibility to a single man. और एक अकेला व्यक्ति को एक अविश्वासी राजा जो है कितनी बड़ी जिम्मेवारी को देता है। Recognition of the spiritual quality of this man and acceptance that he has good integrity and he will do what he has been asked to. और देखिए वहां पर एक पहचान को हम देखते हैं कि वो एक जो है आत्मिक व्यक्ति है। इस बात की भी परख वहां पे किया जाता है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है, और जो कुछ भी वो करेगा वो बेहतर रीति से करेगा। Trust is expressed. Trust over that leader is expressed. क्या हमारा जो भरोसा है हमारे अगुवेपन में वो झलकना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए। Now read verse 17 and 18. अभी हम पद 17 और 18 पढ़ेंगे। इस कारण तू उस रुपये से फुर्ती के साथ बैल, मेढ़े और मेमने, उनके योग्य अन्न बलि और अर्घ्य की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है, जो चांदी सोना बचा रहे, उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। Beautiful verses. बहुत ही सुंदर पदों को हम यहाँ पर देखते हैं। In 17 the king says, और पद 17 में राजा इस प्रकार से कहता है, you buy with whatever money we have given you the things required for sacrifice. और बलिदान के लिए जो भी आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है उसमें से तू अपने लिए खरीद ले जो तुझे दिया गया है। And then verse 17 he says, और उसके बाद और भी 17 पद में कहता है, whatever is left in your hand, और जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में बचा रहे, and you are free to do what you want. और जो कुछ तुम्हारे हाथ में बचा रहे तुम स्वतंत्र हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करना। See, you and your brethren, according to the will of God, whatever you want to do, you can do with the excess thing. तुम और तुम्हारे भाई परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो तुम उचित समझो वो करो। Can such a trust be imposed? Trust can be expressed upon the Christians today. क्या इस प्रकार का भरोसा, इस प्रकार का विश्वास मसीहियों में आज देखा जा सकता है? क्या भरोसा किया जा सकता है? What a sad thing today is, it even comes in the newspapers and the public, there are corruptions among the Christian leaders. और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि समाचार पत्रों में इस बात को देखा जाता है कि मसीहियों के भ्रष्टाचार के विषय में पब्लिक रीति से ये बातें देखी जाती हैं। There is a mistake in the typing there. It should be corrected. True integrity is expressed in these verses. और जो है सच्ची ईमानदारी जो है इन बातों में, इन सारी बातों में जो है दिखाई देनी चाहिए, झलकनी है। King's trust in the integrity of Ezra is expressed. और राजा ने एजरा के उस ईमानदारी पर, जिससे उस ईमानदारी को जिसे उसने दिखाया, उस पर उसने भरोसा किया। Because of the integrity of Ezra, he acquires freedom to handle the things of God. और उस ईमानदारी के भरोसे के कारण एजरा को ये आजादी मिले ताकि चीजों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो पूरा करे। It is very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण।
Read verse 20, please. 20 पद हम पढ़ेंगे। इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े वह राज खजाने में से दे देना। He has been given further accountability. His जो है accountability अब is उसके जवाबदेही specified. जो है यहाँ पर जो जवाबदेही है वो बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। Liberty to plan and execute the service and authority to gather suitable resources. और आवश्यक स्रोत को प्राप्त करने के लिए उसे संपूर्ण आजादी मिली है ताकि अपनी सेवा को अधिकार पूर्ण वो कर सके। Such a liberty given by an unbelieving man to a believer. और एक अविश्वासी के द्वारा इस प्रकार की आजादी एक विश्वासी। See, the situation in Jerusalem was not easy. और देखिए यरूशलेम की जो परिस्थितियां हैं वो आसान नहीं है। Hundreds of miles away from the king's palace. और उस राजा के महल से हजारों सैकड़ों मील दूर है। There is no internet to communicate immediately when the difficulty arises. और जब कठिनाइयां जब समस्याएं आती हैं तुरंत से राजा के साथ संपर्क साधने का कोई साधन नहीं है। It takes days and weeks and months probably to communicate. और संभवतः एक दूसरे से संचार करने के लिए दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए दिनों लग जाते हैं, सप्ताहों लग जाते हैं, महीनों लग जाते होंगे। There were enemies at the door. और जो शत्रु हैं उनके द्वार पर खड़े हुए हैं। They did not wanted the Jerusalem temple to come up again. और वो इस बात को नहीं जानते हैं कि यरूशलेम का मंदिर पुनः जो है स्थापित किया जाए, बनाया जाए। They don't want Judah to come up in its glory again. और वो नहीं चाहते कि यहूदा फिर से अपनी महिमा को प्राप्त करे। So in this situation, he has been given liberty to plan and execute the service of God. और इसलिए एजरा को राजा के द्वारा इस प्रकार से आजादी मिली है ताकि अपनी सेवा को भली भांति अधिकार पूर्ण रीति से संपन्न कर सके। It is not easily, nobody will give such authority in such a situation. और इस परिस्थिति में कोई भी जो है इस प्रकार का अधिकार नहीं देगा इस विपरीत परिस्थिति, Unless that person is trustworthy. जब तक कि वो व्यक्ति भरोसेमंद। So we stop here today. इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं And we will continue, God willing, in the coming Sunday. और परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम आने वाले रविवार को इस पर जारी रखें। Thank you very much.